में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम सूर्य के 5 श्लोक को लेंगे। सो जिसमें से हम सेकंड श्लोक अभी ले रहे हैं। तो सेकंड श्लोक क्या है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर् विनश्यति। सो इसमें हमने बताया था द 6 थिंग्स which are unfavorable for devotional service, or the 6 things which can destroy our bhakti. So what are those things? What is the first? Atyahar means overeating or over collecting. Overeating or over collecting. Then prayas means over endeavoring for mundane things. Prajalpa means talking unnecessarily about the mundane subject matters which is not related to a Krishna Katha or our sadhana bhakti. That is called Prajalpa. Then Niyam Agraha. So there are 2 things, Niyam Agraha and Niyam Agraha. So what is Niyam Agraha? Yes, only for the following, for the sake of following. Okay, because now I am practicing Krishna consciousness, so there are certain rules and regulations. Because I have to practice bhakti, so I have to get up early in the morning. I have to chant Hare Krishna Mahamantra. I have to read Prabhupada books. So I have to do this. So but his main concern is not for spiritual advancement. Rather than he is thinking that I have to practice this Krishna consciousness, so I have to follow these rules and regulations because I have to go through these rules and regulations, right? So he's thinking like that, not thinking that I have to progress, because these things will help me to progress in Krishna consciousness. Okay, so whatever rules and regulations we are following in Krishna consciousness, what should be the concern? The concern should be that these things will help me to progress in Krishna consciousness. क्योंकि अगर ये चीज़ अगर हमें पता नहीं होगा क्यों मुझे सुबह जल्दी क्यों उठना है, क्यों मुझे उठते साथ नहाना है, क्यों मुझे भक्तों के साथ बैठ के जप क्यों करना है कि नहीं? अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो फिर मन में अलग बहुत सारे डाउट आ सकते हैं। क्यों मैं घर पे रह के भी तो भक्ति कर सकता हूँ, घर पे भी तो मैं जप कर सकता हूँ, घर पे भी मैं प्रभात बुक रीडिंग कर सकता हूँ, घर पे भी मैं डीटी वर्शिप कर सकता हूँ, घर पे भी मैं खाना बना के भोग लगा खा सकता हूँ। तो मंदिर में रह के ही भक्तों के साथ रह के ही भक्ति क्यों करना है? अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो चीज़ें क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति जो है वो भक्तों के साथ में रह के ही क्या है पॉसिबल है, अकेले भक्ति पॉसिबल नहीं है, right? So that's why Srila Prabhupada made so many ISKCON temples. What is the why Prabhupada made this so many ISKCON temples? Because Prabhupada knew very well that alone we can never be able to practice Krishna consciousness, because Maya is very, very powerful, right? So we need the devotee association and the protection of Krishna. So the temple is the best place where we can practice sadhana bhakti very, very easily, right? So because when we are in the devotee association, then devotee, they help us, right? They help us to progress in Krishna consciousness. जब आप घर पे होते हैं, अकेले हैं, आपकी उठने की इच्छा है, लेकिन कई बार मन परेशान करता है, चलो थोड़ा आधा घंटा और सो लेते हैं, थोड़ा आधा घंटा और सो लेते हैं। इस तरीके से आधा घंटा कर करके पता नहीं चलता है कब 2 घंटे निकल जाते हैं और सोचते हैं कि अरे आज तो मुझे 4 बजे उठना था, 7 बज गए। कई बार ऐसा होता है, 7 बज गए, 3 घंटा कब चला गया। मैं तो सोच रहा था कि 20 मिनट के बाद उठ जाऊंगा, अलार्म बजा लेकिन मैं सुन नहीं पाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर आप अकेले थे, अंडरस्टैंडिंग, इसलिए आप खुद की मदद नहीं कर पाए। लेकिन जब आपके आसपास कोई डिवोटी अगर होते, साथ में कुछ भक्त लोग अगर सोते रहते, तो क्या आप 7 बजे तक सो पाते? क्या वहां पर आप नहीं सो पाते? क्योंकि भक्त लोग कोई ना कोई आपको वहां पर उठा देता है कि प्रभु मंगल आरती है, अभी उठना, चलो उठना है। सो इन दैट रेस्पेक्ट डिवोटी एसोसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एसोसिएशन बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो घर पे रह के हम भक्ति नहीं कर सकते, ये चीज हमें समझ में आना चाहिए, है ना?
डिवोटी एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उसी प्रकार से आप जप कीजिए, आप अकेले जप करिए और भक्तों के साथ में बैठ के जप कीजिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो कहाँ पे हम ज़्यादा आसानी से जप कर सकते हैं। अकेले आप जब करेंगे बहुत सारे मन में थॉट्स आएंगे, हो सकता है कई बार ड्यू टू वीकनेस और आप लेट सोए हैं, नींद पूरा नहीं हुआ तो आप सो जाएंगे। लेकिन अगर आप अकेले जब कर रहे हो, जब आप सो गए तो आपको जगाने के लिए कोई आएगा क्या? वहाँ पर कोई जगाने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, पता चला कि 6 बजे सोए थे, नींद खुली 7 बजे, 1 घंटा कब निकल गया पता नहीं चला। वो जिस जहाँ पर माला पकड़ी थी वो वही माला एज इट इज है, एज इट इज, एक माला भी आगे नहीं बढ़ा। कई बार ऐसा होता है, हम सो जाते हैं और माला पकड़े रहते हैं, देखते हैं जितनी थी वो आधे घंटे पहले इतना था वही है, आगे बढ़ा ही नहीं, वहीं की वही माला है। तो इसलिए अकेले रह के भक्ति करना वेरी वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन जब आप भक्तों के साथ मिलकर जब करेंगे तो सामने जो भक्त बैठा होगा, आपके आजू बाजू भक्त बैठा होगा, वो देख के गाड़ी प्रोड्यूस हो गए, वो थोड़ा आपको जगा देगा, प्रभु जी उठिए, थोड़ा उठिए, निकल जाएगी, है कि नहीं। एक बार सोगे, 2 बार सोगे, फिर आपको थोड़ा सा गिल्टी फील होगा, सोचोगे चलो आज थोड़ा सा खड़े होकर जब कर लेते हैं, थोड़ा टहल के जब कर लेते हैं। इसलिए भक्तों के साथ में रहने से क्या होता है, भक्ति बहुत आसान हो जाती है, वो हमें हेल्प करते हैं भक्ति में बढ़ने के लिए। ओके, तो इसलिए सो ये नियम आग्रह मीन्स क्या होता है कि हमें नियम आग्रह से ऊपर उठना चाहिए। केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ केवल मुझे बस भक्ति करना है इसलिए मुझे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, नहीं अंडरस्टैंड नहीं। इसलिए दूसरा होता है नियम आग्रह। नियम आग्रह मतलब होता है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस वो फॉलो ही नहीं करते हैं, दे डोंट फॉलो एनी रूल्स और रेगुलेशंस, तो वो नियम आग्रह में जाता है। तो हमें, हमारे लिए ना नियम आग्रह ठीक है ना ही नियम आग्रह, हमें दोनों से ही ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, देन लॉलियम। लॉलियम मीन्स क्या होता है, ग्रीडी, ग्रीडीनेस। तो ग्रीडीनेस वास्तव में हमें किसके लिए होना चाहिए, फॉर डिवोटी एसोसिएशन के लिए, नॉट फॉर मंडेन थिंग्स, नॉट फॉर मटेरियल डिजायर्स, ग्रीडी ओनली फॉर डिवोटी एसोसिएशन। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि कीट जन्म हो यथा तुआ दासा, भक्त ग्रहे जन्म हो यही मोर अभिलाषा। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि अगर मेरा जन्म अगर कीट के रूप में भी अगर होता है, लेकिन एक डिवोटी के घर में मेरा अगर जन्म होता है तो वो मेरी इच्छा है, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मुझे नॉन डिवोटी घर में मेरा जन्म नहीं होना चाहिए, भले ही मैं कितना भी रिच फैमिली में जन्म मेरा क्यों ना हो, आई डोंट वांट दैट। तो ये भक्ति विनोद हमें सिखा रहे हैं क्या, कि अगर हम मेरा जन्म हो, भले ही मेरे कीट के रूप में जन्म क्यों ना हो, लेकिन वो एक भक्त के घर में होना चाहिए, भक्त गृहे जन्म, यही उनका क्या है, अभिलाषा है। सो हमेशा हमारा जो लॉलियम है, वो ग्रीड है, वो हमेशा होना चाहिए कि मैं कैसे भक्तों के साथ में रह सकता हूँ। तो हमें डिवोटी एसोसिएशन के लिए खोज करना चाहिए, वेयर आई विल गेट डिवोटी एसोसिएशन, वेयर आई विल गेट डिवोटी एसोसिएशन। सो नियम आग्रह, देन जन संग। सो जन संग मीन्स not to associate mundane people or worldly minded person, or those who associate with the women, those who talk always about the women. Even you see that they are called योषित संगी संगस्य, है ना, योषित संगी, योषित मतलब होता है women और योषित संगी मतलब होता है those who associate with the women, they are called योषित संगी. So even to associate with those people who are associating with women, that is more dangerous, right? To associate the people, those who are associating with women, is more dangerous with her directly associating with the woman. Got it point? Because when you associate with the people, those who associate with the women, they are always talk about the opposite sex. They will always talk about with her on, about her. So that's why we should never associate such type of atheistic people, specifically in college life and working life. We should immediately reject such type of people, because to protect our own Krishna consciousness, to protect our own bhakti is the first priority for us. That should be clear in our mind. The first property is that I can take all type of risk to protect my bhakti.
This is the bottom line. But don't never take risk for your devotional service. Never take risk for your devotional service. Okay. So now we will read from Srila Prabhupada purport. Somebody can read it. Yes. Okay. Okay. So here it is talk about the first thing, atyahar. Okay. So Prabhupada is giving wonderful example, right? What Prabhupada gave example here? If a bag of rice is placed in a public place, then if birds will come, then what she will do? She will just eat few grains, then go away. If some animal will come, then what animal will do? Animal also will take some part of grain, then go away. But as soon as human will come, then what he will do? He will take away the whole bag of rice. Right? That is called atyahar. Although that time he doesn't need, right? So that is called atyahar. Why? Because he will eat. Because why he will take a whole bag of rice? Because he is thinking that, okay, in the future I will keep it for storage purpose. So that is called the atyahar. So whatever there is a need of body, only that much we should collect, not more than necessary. So that's why regarding this atyahar, there is a very wonderful shloka in Ishopanishad also. ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन भुंजिता माँ गृधा कश्य शुद्धनम। माँ गृधा कश्य शुद्धनम मतलब दूसरों का जो कोटा है उस पर हमें अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया कि हर व्यक्ति के लिए एक कोटा निर्धारित किया है, तो हमें उतना ही लेना चाहिए, दूसरों के कोटे पे अधिकार नहीं जताना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रसाद लेने के लिए बैठे हैं, सबको एक एक गुलाब जामुन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आपको भी एक गुलाब जामुन मिला है, आपके बगल वाले डिब्यूटी को भी एक गुलाब जामुन मिला, सबको एक एक गुलाब जामुन मिला हुआ है। लेकिन चूंकि क्या है कि आपके अंदर क्या है, अत्याहार की लालसा है, या बोल सकते हैं ग्रीडी। हालांकि एग्जाम्पल ग्रीडी में जाएगा, बट लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या किया कि जब वो गुलाब जामुन जब सेकेंड टाइम सर्व हुआ है ना, तो फिर भी आपने उसको रख लिया। हो सकता, क्यों रख लिया आपने उसको? स्टोर करने के लिए। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको नहीं खाओगे, लेकिन सोचोगे चल इसको रख लेता हूँ, बाद में खाऊंगा। तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो हम रख देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कई बार। और दूसरे दिन याद आता है ये तो रखा था मैंने, इसको तो मैं खा ही नहीं पाया, और वो खराब भी हो जाता है। राइट, तो फाइनली फिर वो किसके हाथ में जाता है? वो चींटियाँ खाती हैं, वो उनके कोटे में चला गया वो। तो कई बार ऐसा होता है, स्टोरेज करने से क्या होता है, हम उसको रख देते हैं, फिर ना हम उसको यूज नहीं कर पाते, ना ही हम किसी को दे पाते हैं, और फाइनली फिर वो उसको कीड़े वगैरह, चींटियाँ वगैरह उसको खाते हैं। तो इसलिए अननेसरी हमें कुछ भी स्टोरेज करके नहीं रखना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ठीक है। अंडरस्टैंडिंग? कई बार होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें, खुद के कपड़े हैं, मोबाइल है, घड़ी है, सॉक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कई बार इतना ज़्यादा हम यूज़ मतलब रख लेते हैं, खरीद के रख लेते हैं कि वो हम उसको कई बार यूज़ भी नहीं करते हैं, बस रख देते हैं, पड़ा रहता है वो, है ना। रखा वो खराब हो जाता है, ना तो हम खुद यूज़ करते हैं, ना ही हम दूसरों को देते हैं उसको। राइट,
क्यों नहीं दे, क्यों हम यूज नहीं कर पा रहे हो, क्यों हम दूसरों को भी नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कम से कम मैं फ्यूचर में यूज करूंगा, कम से कम इसको, अभी नहीं लेकिन बाद में यूज करूंगा। तो इस तरीके से ये टेंडेंसी से सोच के हम क्या करते हैं, उसको ना खुद के लिए यूज कर पाते ना दूसरों को देते हैं, वो रखा रखा खराब हो जाता है, फाइनली फिर उसको डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। ये इसको बोलते हैं अत्याहार, ओवर ईटिंग एंड ओवर कलेक्टिंग। इसलिए जितना शरीर की नीड है उतना ही हमारे पास होना चाहिए, जिसको देखो एक चीज जो है इसका तरीका कैसे पता चलेगा कि मेरा अत्याहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंपल चीज है, देखिए जो भी चीज आप रेगुलर बेसिस में आप यूज कर रहे हैं, जैसे आपका मोबाइल हो गया, घड़ी है, लैपटॉप है, खाने पीने का सामान है, कपड़े है, जो भी है रेगुलर बेसिस पे जो यूज हो रहा है, आप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है वो आपकी नीड है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जैसे आपने खरीद के रख लिया है, जैसे बॉटल है ना, एक बॉटल है, दो बॉटल है, आपने 3-4 बॉटल खरीद ली, तो 2 बॉटलों को आपने रख दिया स्टोरेज में, अब वो यूज ही नहीं हो रही हैं, सालों साल तक यूज नहीं हुआ है कि नहीं? तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि वो क्या है, वो अत्याहार में चला गया, वो एक्स्ट्रा चीज है वो आपके लिए, मतलब वो शरीर की नीड नहीं थी वास्तव में। तो इसलिए जितना यूज हो रहा है शरीर की उतना ही हमें यूज करना चाहिए, अन्य सब चीजों को कलेक्ट नहीं करना चाहिए, वो अत्याहार में जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रभुपाद बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं, इन द एनिमल किंगडम देयर इज जनरली नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम और स्कार्सिटी ऑफ नेसेसिटीज, राइट? ये सही है। जानवरों की जो सोसाइटी है उसमें कभी भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होता है, और ना ही कभी कोई प्राणी, कभी कोई भी जानवर भूखा मरता है। कभी न्यूज़पेपर में हम नहीं सुनते कि कोई हाथी है जंगल में भूख से मर गया है, कभी हम ऐसा नहीं सुनते हैं ना, किसी भी एनिमल स्पीसीज के बारे में आप कभी सुनोगे नहीं कि ये जो है ये भूख से मर गया है, नहीं, कभी नहीं सुने। क्यों? क्योंकि वो अत्याहार नहीं करते हैं, नेचर उनको जितना भी प्रोवाइड कर रहा है वो उन पे ही डिपेंडेंट है बस, ठीक है? वो दूसरे के कोटा जो है उसको वो हड़पते नहीं है ना जबरदस्ती, जैसा कि ह्यूमन सोसाइटी में होता है। और यही कारण है ह्यूमन सोसाइटी मतलब लोग भूख से मरते हैं और उनका न्यूज़पेपर में आता है न्यूज़, हाँ इतने सारे लोग जो है भूख से मरे, क्यों? वही, क्योंकि जो ज्यादा पावरफुल होता है वो क्या करता है, जो कमजोर व्यक्ति होता है उससे हड़प लेता है। तो कमजोर लोगों को शोषण किया जाता है ना? तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद इसमें एक अच्छा पॉइंट बोलते हैं, है ना, कि जो लोग पावरफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गरीब लोगों का शोषण करते हैं। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, प्रभुपाद इसमें वर्ड यूज करते हैं, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो जो लोग, तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट मतलब इसमें प्रभुपाद अच्छे से बताते हैं कि नॉट फॉर बॉडीली लेवल बल्कि ऑन स्पिरिचुअल लेवल। सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है कि नहीं, वो ही इज फिट फॉर सर्वाइवल, वो जिएगा, नहीं। सर्वाइवल फिटेस्ट मतलब वो है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, वो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट उसके लिए यूज किया गया है ना, नॉलेज, दोज हु आर नॉलेजेबल पर्सन, इसलिए उसको बोला गया है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, नॉट ऑन बॉडली प्लेटफॉर्म बट ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। और तो यही कारण है, अब देखो एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेस, टेंशन, कभी भी जानवरों की सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, कितना पीसफुल खड़े रहते हैं। आप कभी गाय को कभी ध्यान से देखना, कितने पीसफुल तरीके से खड़ी रहती हैं गाय लोग, है ना, क्योंकि जो उनको देते हैं उसमें वो सेटिस्फाई रहते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या होता है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, जितना हमें मिलता है हम सोचते हैं चलो एक और ले लें, एक और ले लें, एक और ले लें, इस तरीके से होता है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो पहले हम भोग करते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, रोग हो जाता है। और ये चीज़ बार बार होती रहती है, कभी भी मतलब हमें मतलब थोड़े समय के लिए हम गिल्ट फील करते हैं, क्योंकि डिजीज जब हमें हो जाता है थोड़े समय के गिल्ट होता है, यार मैं थोड़ा कल ज़्यादा गुलाब जामुन खा लिए, कल ज़्यादा रसगुल्ला खा लिए, थोड़ा सा जब डिजीज हो गया, थोड़ा सा हेल्थ खराब हो गया तो हम गिल्टी फील करते हैं कि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन जैसे ही जब बॉडी क्यूर हो जाती है कुछ समय के बाद फिर से हम खा लेते हैं, तो यही चलता रहता है, ठीक है। लेकिन रियल गिल्ट का मतलब ये होता है, रियल गिल्ट मतलब है कि आप फिर उसको, आपको ये डिटरमाइन होना चाहिए कि हाँ आप कुछ भी हो जाए मैं कभी भी ज़्यादा नहीं खाऊंगा, जितना शरीर के लिए जरूरी होगा उतना ही खाऊंगा, ठीक है। भले ही देखो सपोज जैसे फीस्ट भी हुआ है, अगर 20 आइटम्स बने हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपको 20 आइटम खाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई जबरदस्ती आपको परोसेगा, नहीं पूरी आपको खानी पड़ेगा, 20 आइटम बने हैं मतलब आपको खानी पड़ेगा, कोई फोर्स नहीं करता आपके लिए,
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आप सेलेक्ट कीजिए, है कि नहीं। कोई जरूरी नहीं कि आपको 20 आइटम ही खानी पड़ेंगे। आपकी हेल्थ के लिए देखिए कि आपको क्या सपोर्ट करता है क्या नहीं सपोर्ट करता है कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्वीट नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, तो वो स्वीट को सिलेक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है भले 4-5 प्रकार की स्वीट बनी होंगी फीस्ट में, बट लेकिन वो नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये है। So we should be very very much careful for अत्याहार। So no, neither eat too much nor collect too much, है ना। दोनों चीज़ों के बताया गया है। खाने के संबंध में भी बताया गया है, ज़्यादा हमें खाना नहीं चाहिए, उतना ही खाओ जितना कि हमारी बॉडी की नीड है, और उतना ही कलेक्ट करो जितना कि वो हमारे रेगुलर यूज में हो रहा है। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द प्रयास। ध्रुव, डू यू वांट टू रीड प्रयास? Yes, Prabhu. Hare Krishna. Collecting and eating more than necessary also causes prayas or unnecessary endeavor. By God's arrangement, anyone in any part of the world can live very peacefully. If he has some land and a milk cow, there is no need for man to move from one place to another to earn a livelihood. Or one can produce food grains locally and get milk from cows. That can solve all economic problems. Fortunately, man has been given higher intelligence for the cultivation of Krishna consciousness or the understanding of God, one's relationship with Him, and the ultimate goal of life, love of God. Unfortunately, so-called civilized man, not caring for God realization, utilizes his intelligence for getting more than necessary and simply eat to satisfy the tongue. यस, By God's arrangement, यस। यहाँ पर बता रहे हैं एक्चुअली ये जो प्रयास है ना, ये अत्याहार से कनेक्टेड है। पहली लाइन में प्रपात बोल रहे हैं, कलेक्टिंग एंड ईटिंग मोर देन नेसेसरी ऑल्सो कॉजेज प्रयास और अननेसेसरी एंडेवर। तो व्यक्ति अननेसेसरी एंडेवर कब करता है? जब ज़्यादा उसका डिमांड होता है ना, ज़्यादा कलेक्शन या ज़्यादा ईटिंग मोर देन नेसेसरी, तो उसके लिए फिर प्रयास भी करना पड़ेगा ना भैया को ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करना, तो उसके लिए आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। सो बेसिकली अत्याहार लीड्स टू प्रयास, है ना। इफ देयर इज नो अत्याहार देन देयर इज नो प्रयास। सो अत्याहार लीड्स टू प्रयास। तो अगर आप पहले अत्याहार को ही अगर पहले से रेगुलेट कर लेंगे तो बाकी की जो स्टेप्स हैं ना वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाएंगे। इसलिए पहले स्टेप को ही हमें क्या कर लेना चाहिए? रेगुलेट करना चाहिए। जैसे भगवद गीता में 2.62 2.63 में बोलते हैं भगवान, ध्यायतु विषयान पुंसा संगस ते सुपजायते संगात संजात कामात कामात क्रोधा भी जायते। राइट, उसमें बता रहे हैं कि जब हम किसी सेंस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, राइट, तो जब उसके बारे में हम कंटेम्पलेशन करना जब शुरू कर लेते हैं तो फिर क्या होता है? लस्ट बढ़ता है। एंड व्हेन लस्ट नॉट गेट फुलफिल्ड देन एंगर कम्स आउट, है ना। तो उसमें फिर भगवान बोलते हैं कि जो पहला स्टेप है कंटेम्पलेशन ऑन सेंस एंजॉयमेंट की जो ऑब्जेक्ट है उस पर ही कंटेम्पलेशन जो कर रहा है उसको ही बंद कर देना चाहिए, पहले स्टेप में उसको रोक देना चाहिए। नो कंटेम्पलेशन, एक बार आपने देखा उसके बाद उसको आगे बढ़ जाओ, बस उसको कंटेम्पलेशन नहीं करना, सोचना नहीं उसकी चीज के बारे में, अंडरस्टैंड नहीं। इस तरीके से जैसे हम देखते हैं बाहर हम जाते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव सीन्स दिखते हैं बहुत सारे, ठीक है, आंखें बंद करके हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार आपने देखा तो उसके बारे में फिर कंटेम्पलेशन शुरू हो गया। जैसे अजामिल का पास्ट टाइम आता है इसमें, सेकंड चांस बुक जो है, ठीक है, तो अजामिल के साथ यही हुआ था। उसने जब प्रोस्टिट्यूट वैश्य और शूद्र और शूद्राणु को जब देखा था, हाँ, तो वो क्या किया, देखने में कोई मिस्टेक नहीं था एक्चुअली, देयर इज नो मिस्टेक बाय सीइंग, लेकिन मिस्टेक क्या हुआ उसका, ही वाज कंटेम्पलेटिंग, वो कंटेम्पलेट सोच रहा था बार बार, तो कंटेम्पलेशन से धीरे धीरे फिर क्या हो गया, वो वही ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्त सुजाते। तो जब कंटेम्पलेशन करते हैं तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में जो हम सोच रहे हैं जिसके बारे में, उसका संग करने की इच्छा होती है, फिर हाउ आई कैन फिजिकली एसोसिएट, राइट। और जब वो इच्छा पूरी जब नहीं होती तो फिर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कम्स आउट, फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एंगर। तो सिमिलरली यहाँ पे वही चीज बोल रही है, जब हम अत्याहार के पीछे भागते हैं, ओवर ईटिंग और ओवर कलेक्टिंग, देन दैट अत्याहार लीड्स टू प्रयास, ओवर अननेसेसरी एंडेवर। तो यहाँ प्रपात बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहा है कि बाय द गॉड्स अरेंजमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एनी वन
can live very peacefully if he has two things. What are the two things? Land and milk, cow milk. To do these two things are sufficient to live peacefully. There is nothing more necessary. तो इन दो के अलावा हम जितना भी कुछ कर रहे हैं वो वास्तव में वो अत्याहार है कि नहीं? प्रभुपाद की डेफिनेशन के हिसाब से थोड़ा सा जमीन और काऊ का मिल्क सफिशिएंट है, उसके आगे से अगर हम कुछ चीज़ कर रहे हैं इसका मतलब वो अत्याहार है। तो इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन में, हम देखेंगे हमारे जहाँ पे भी जितने भी इस्कॉन टेम्पल है मैक्सिमम मतलब इस्कॉन टेम्पल जो है गौशाला रखते हैं, और गौशाला से जो दूध आता है, देसी गाय हम रखते हैं, देसी गाय, उनसे जो दूध आता है वो भगवान की सेवा में लगता है। तो पहले भगवान की सेवा में लगता है, देन उसके बाद फिर क्या होता है, फिर वो भक्तों, अगर वो एक्स्ट्रा बचता है तो फिर भगवान की सेवा में लगता है। ठीक है, तो इसलिए तो काऊ जो है वो भी भगवान की सेवा में लग रहे हैं, है ना, और वो भी देसी गाय, है ना, बिकॉज कृष्णा's name is Gopal, right? So he likes cow very nice. So that's why now cow they are also using in the service of Krishna. So if you have two things, land and milk, then there is nothing need. Because if you have 2 acres jameen, then you can grow vegetables there, right, your own. इसलिए गुरुकुल आप देखते हैं, गुरुकुल में जो है नेचुरल चीजें होती हैं, वहां पर वो खुद ही उसको उगाते हैं वहां पर, है ना। तो अभी आप देखें, अभी ज्यादा डिजीज हमें क्यों होते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी चीज नेचुरल नहीं मिल रही है अभी, वेदर दे आर वेजिटेबल्स और दे आर फ्रूट, है ना, कुछ भी हो वो नेचुरल नहीं है एक्चुअली, सबको दवाई लगा के पकाते हैं एक्चुअली, है ना। फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, उनको जो है फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन लगा के वो पकाते हैं, और हमारे पास वो आता है। हमारे पास कुछ भी चीज़ नेचुरल नहीं आती है वास्तव में, इसलिए ये डिजीज का कारण है। आप देखिए हमारे जितने भी जैसे जो पुराने लोग हैं, स्पेसिफिकली हमारे जो ग्रैंड फादर हैं, देखो कितना लंबे समय तक जीते हैं, है ना। इवन कुछ तो ऐसे हैं जो मतलब इवन दे क्रॉस 100 ईयर्स, 100 साल के ऊपर वो क्रॉस कर गए हैं, है कि नहीं, पुराने लोग हैं। क्यों ऐसा होता है, अभी का जनरेशन में ऐसा नहीं हो पा रहा है। अभी तो मैक्सिमम 70 ईयर्स, 75, बस उसके बाद हरे कृष्णा हरे राम हो जाता है उनका। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, इज इट सो? क्योंकि पहले के जो लोग होते थे वो मतलब नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा रहते थे, उनका पूरा जीवन यहाँ पर नेचुरल चीज़, खुद का पकाते थे, ठीक है, बाहर से कुछ भी नहीं खरीदते थे, खुद का उनका गार्डन होता था, जमीन होता था, वो वहाँ पर खेती खुद का ही करते थे, वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ, ठीक है, इस तरीके से। और वो नेचुरली चीज़ें, योग वगैरह, मेडिटेशन, ये सब सुबह जो है मतलब शुद्ध नेचुरल पानी पीना, है ना, इस तरीके से। लेकिन अभी क्या हो गया, हर चीज़ आर्टिफिशियल हो गया है, कुछ भी नेचुरल हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा जो एज है वो भी कम हो गया है, डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, और हमारा जो हेल्थ है वो भी बिगड़ता है। लंबे समय तक हम मतलब स्वस्थ रह नहीं पाते हैं, है ना, जल्दी हम बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो इन चीज़ों का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है वास्तव में, तो खाने पीने का, है ना। तो इसलिए अभी तो जैसे देखो देसी गाय का दूध मिलना भी कितना दुर्लभ है, मिलता ही नहीं है, क्योंकि देसी गाय है ही नहीं, है ना। People, they are killing the cows, that's why there are so many slaughterhouses are there. So you can very well imagine, cow is a mother and they are killing their own mother, so what will be the reaction? और एक तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कोरोना वायरस, right, and that corona virus taught so many people, those who were doing such type of sinful activities, right, but still people, they are continuing such type of sinful activities now still, right. So that's why time to time कृष्णा जो है वो कोरोना वायरस जैसे कुछ माध्यम बना के इस प्रकार से लोगों को जो है पनिश करते हैं, राइट। सो दैट इज एक्चुअली कृष्णास प्लान ओनली, है ना। और इसमें ज्यादातर वही लोग पनिश होते हैं जो इस प्रकार की सिंफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई, है ना, if someone has sufficiently land and milk, then that can solve the all economic problem.
So Prabhupada here is telling that fortunately man has been given higher intelligence for cultivation of Krishna consciousness or understanding of God. तो इसलिए Krishna awarded intelligence, so we should use that intelligence in Krishna consciousness, not to advance in material civilization or to collect more material things or for our bodily demands. There is no such need. बॉडी को केवल उतना ही देना चाहिए जिससे कि हम अपना भक्ति अच्छे से कर पाए, राइट, उतना ही देना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं हम, जब अत्याहार की अवस्था में चले जाते हैं तो हम इतना खा लेते हैं कि फिर हेल्थ खराब हो जाता है और फिर हमारी भक्ति भी सही से नहीं हो पाती है ना हमारा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ना पढ़ाई सही से हो पाती है ना ही भक्ति सही हो जाती है, दोनों ही नुकसान होता है दोनों का। इसलिए हेल्थ को टेक केयर करना ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी, है ना। वी शुड ऑलवेज टेक केयर अवर हेल्थ। तो इसलिए जब हम उठते हैं मॉर्निंग में तो हमें उठते ही साथ सबसे पहले पानी पीना चाहिए, कम से कम 1 बॉटल पानी हमें पीना चाहिए उठते ही साथ। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है वास्तव में, उठते ही साथ आपको कम से कम पानी पीना चाहिए। और अगर हो सके तो थोड़ा सा वार्म करके पीना चाहिए, वार्म वाटर। तो उससे क्या होता है ना, प्रेशर आता है और पेट हमारा साफ हो जाता है। 90% प्रॉब्लम तो होती है क्योंकि हमारा पेट क्लियर नहीं होता है, हमारा स्टोमक साफ नहीं होता है। और जब स्टोमक साफ नहीं होता है तो फिर क्या होता है, बहुत एजिटेट लगता है, कुछ भी मन नहीं लगता है फिर हमारा किसी भी चीज़ में। तो इसलिए ये सब साइंटिफिक चीज़ें हैं एक्चुअली। तो उसके साथ हमें जो है हमेशा पानी बैठ के पीना चाहिए, सुबह सुबह वार्म वाटर पीना चाहिए, जिससे क्या होता है पेट साफ हो जाता है। और जब पेट साफ हो जाता है तो फिर सब कुछ कितना अच्छा लगता है ना। तो इस तरीके से खाना पीने का जो टाइम फिक्स होना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं खाना चाहिए, है ना, जल्दी खाना चाहिए, इस तरीके से। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, इफ पीपल गोल्डन। तो यहाँ पर अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ, बाय गॉड्स अरेंजमेंट। Somebody can read this paragraph. Somebody can read this paragraph. Abhay can read. Why this point is very important actually। देखो अगर हम प्रभुपाद के वर्ड्स को एज इट इज फॉलो करते हैं तो हमारा जीवन बहुत स्मूथ जाएगा। डेफिनेटली हमारा जीवन बहुत स्मूथ जाएगा अगर हम प्रभुपाद के वर्ड्स को फॉलो करते हैं तो, है ना। नहीं तो एक्चुअली क्या है, लाइफ बहुत सिंपल है, लाइफ इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, बट ड्यू टू अवर ग्रीडीनेस एक्चुअली, है ना, हमने अपना लाइफ जो है बहुत क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया है। जैसे यहाँ बोल रहे हैं कि जनरली पीपल डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं? ड्यू टू अत्याहार, ड्यू टू ओवर कलेक्टिंग। दिस इज द रूट कॉज एक्चुअली। अत्याहार ही वो रीजन है जिसकी वजह से लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। प्लेन लिविंग, बस सादा जीवन, सादे कपड़े पहनो, कुछ वैरायटी होनी चाहिए कपड़ों में, है ना। वही कपड़े रोज पहनना है, कि साधु लोग वही कपड़े पहनते रहते हैं डेली, है कि नहीं। उनको कुछ लगता नहीं है कुछ वैरायटी होना चाहिए जीवन में। उनको लगता है कि इनके जीवन में कोई रस नहीं है, वही डेली एक ही भगवान को देखते रहते हैं, वही माला जप करते रहते हैं, है कि नहीं। वही तो भगवान है, डेली वही माला पकड़े हुए हैं, वही धोती कुर्ता, एक ही कपड़े को कम से कम साल भर चलाते रहते हैं। क्या जीवन है इनका जीवन पूरा नहीं रस है, जीवन कोई रस है नहीं। बाहर के लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं। वही भगवत गीता है, कुछ नया होना चाहिए, कुछ नई वैरायटी होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन सेम चीज को हम रिपीट करते हैं, लेकिन फिर भी कभी आज तक कभी ऐसा फील नहीं होता है कि अरे यार वही भगवान दर्शन कर रहे हैं। कभी ऐसा फील नहीं होता है, आज तक कभी ऐसा फील नहीं होता है अरे वही तो भगवान है कि नहीं। लेकिन मटेरियलिस्टिक लोग
इतनी सारी वैरायटी यूज करते हैं, है कि नहीं? इतना सारा खाने में वैरायटी है, कपड़ों में वैरायटी है, घड़ी में वैरायटी है, जूता पहन रहे हैं उसमें वैरायटी है, टेलीविजन उसमें वैरायटी है, हर चीज में वैरायटी है। इतना वैरायटी होने के बाद भी दे आर फ्रस्ट्रेटेड, isn't it? Still they are frustrated. इतना कुछ, इतना वैरायटी होने के बाद भी उनको सोने के लिए पिल्स खानी पड़ती हैं, मेडिसिन खानी पड़ती है, नींद आने के लिए, कि नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही भाई नींद? इतनी सारी वैरायटी है ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेकिन हमारा जीवन पूरा प्लेन है, सिंपल लिविंग है, लेकिन फिर भी हम आसानी, बिल्कुल पूरा सोने के लिए कुछ दवाई नहीं खानी पड़ती है। जैसे बेड पे जाते हैं आराम से सोते हैं, पूरा कोई टेंशन नहीं, नथिंग। सुबह फिर से उठेंगे, फिर से आराम से नहा धो के मंगलारती जप करेंगे, मंगलारती करेंगे, जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, सिंपल। तो देखो ये चीज है यार, एंड इट्स प्रैक्टिकल, आप खुद देख लो अब, है ना? उनका जीवन सुखमय है कि हमारा जीवन सुखमय है? वो हर चीज बार बार, मतलब नया चीज है उनके जीवन में, हर नया चीज वैरायटी है। हमारा जीवन पूरा प्लेन है, सेम चीज है, सेम धोती कुर्ता है, 2 सेट धोती कुर्ता है, वही हम उनको पहनते रहते हैं, लेकिन कभी और फील नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग जीवन पूरा सुख रहते हैं, सुखी जीवन है। तो कहाँ पर सुखी है बताइए? प्लेन लिविंग में सुख है या कॉम्प्लेक्स लिविंग में सुख है? तो इट्स नेचुरल एक्चुअली। तो क्या है कि हमारा ग्रीडनेस जो स्वभाव है, लालची जो पन है, उसने ही क्या कर दिया है, जिस प्लेन लिविंग को कॉम्प्लेक्स लिविंग बना दिया है, और हाई थिंकिंग को नो थिंकिंग बना दिया है। तो वास्तव में जीवन, सुखमय जीवन का फॉर्मूला यही है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पीसफुल लाइफ? प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और मिजरेबल लाइफ का फॉर्मूला क्या है? कॉम्प्लेक्स लिविंग एंड नो थिंकिंग। तो अभी लोगों ने इस फॉर्मूला को अपना लिया। कौन सा? उनको लगता है कि अरे ये तो यूजलेस है, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। उल्टा कर दिया क्या? कॉम्प्लेक्स लिविंग। जीवन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, हार्ड वर्क करो, गधों की तरह काम करना चाहिए। ये लोग क्या बस मंदिर में खाली बस सोते रहते हैं, खाते पीते सोते रहते, कुछ काम नहीं करते, सोसाइटी के लिए कुछ काम नहीं करते, वोट भी देने नहीं जाते हैं ये लोग। कई बार लोग ऐसे ही बोलते हैं डिवोटी लोग क्या है, तो वोट भी देने नहीं जा रहे हैं, है ना? दे आर पैरासाइट फॉर सोसाइटी। इन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। क्या कर रहे हैं समाज के लिए? ना गरीबों को खाना खिला रहे हैं, ना कुछ भी कर रहे हैं, कुछ तो नहीं कर रहे हैं समाज के लिए, है ना? बस खुद का भजन साधन कर रहे हैं। तो उनकी नजरों में जो है हम लोग पैरासाइट हैं। इसे लेकिन इतना सब बोलते भी लोग हैं, और वही लोग फिर मंदिर आते हैं, वही लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वही लोग फिर मंदिर आते हैं। वो देखते हैं कि भक्त लोग जो है कितना अच्छे से डांस कर रहे हैं, इतना ये लोग सुखी क्यों हैं, इनके चेहरों पे हंसी क्यों है? वाई दे आर डांसिंग, है ना? कोई जीवन में वैरायटी नहीं है ना? सिंपल लिविंग है, लेकिन फिर भी डांस करते हैं ये लोग। हमारे जीवन में कितनी वैरायटी है, लेकिन फिर भी अलग, हर दिन अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, जीवन फिर भी खुशी क्यों नहीं आ रही है? तो उनको जीवन का फॉर्मूला पता नहीं है। जीवन का फॉर्मूला क्या है? जीवन वैरायटी बाहर नहीं चाहिए। वैरायटी कहाँ चाहिए? कृष्णा कॉन्शियसनेस में चाहिए वैरायटी, है ना? भगवान की सेवा में वैरायटी चाहिए। तो वो वैरायटी जो यूज कर रहे हैं वो खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन की कर रहे हैं, इसलिए वो सुख नहीं है। तो वैरायटी यूज करना है, लेकिन किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए वैरायटी होना चाहिए, है कि नहीं? हम जो कपड़े पहनते हैं, धोती कुर्ता, वो खुद के प्लेजर के लिए नहीं पहनते हैं, है कि नहीं? दूसरों को शो ऑफ करने के लिए नहीं पहनते हैं, दूसरों को दिखावे के लिए नहीं पहनते हैं, भगवान को अच्छा लगता है। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग ये भगवान को अच्छा लगता है, तो भगवान को प्लीज करने के लिए हम ये करते हैं। तो भक्ति में हम हर चीज वो करते हैं जो भगवान को सुख दे, राइट? सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? खुद को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो भगवान को प्लीज करते हैं, भगवान से प्लीज हो जाते हैं। माला जप क्यों करते हैं? भगवान को प्लीज हो जाते हैं। मंगल आरती अटेंड करते हैं, है कि नहीं? डेबूटी एसोस करते हैं, प्रसाद पाते हैं, भगवान को प्लीज करते हैं ये सब। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्चुअली जितना वैरायटी है, इतना वैरायटी तो बाहर भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? जितना वैरायटी कृष्णा कॉन्शियस में हो, उतना वैरायटी बाहर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वैरायटी है, इतना वैरायटी होने के बाद भी हम लोग क्या है? सुखी हैं। क्योंकि जो मेन पर्पस है, वो पर्पस क्या है? नॉट टू ग्रेटिफाई अवर ओन सेंसेस रादर देन टू ग्रेटिफाई कृष्णा सेंसेस। जितनी प्रकार की वैरायटी है, सारी वैरायटी को कहाँ पे लगा देना है? कृष्ण की सेवा में लगा देना है, बस। देन यू विल बी हैप्पी एक्चुअली। लेकिन बाहर लोग क्या करते हैं? वैरायटी तो है, लेकिन वो कहाँ पे लगा रहे हैं? वो कृष्ण की सेवा में नहीं लगा रहे हैं, वो कहाँ पे लगा रहे हैं? खुद की सेवा में लगा रहे हैं। जब आप खुद को डेकोरेट करोगे, तो जो मिरर में जो आपका रिफ्लेक्शन है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डेकोरेट हो जाएगा। व्हाट इज पॉइंट? जब आप खुद को सजाओगे, तो जब आप उसको मिरर में देखोगे, तो जो रिफ्लेक्शन है मिरर का, वो ऑटोमेटिकली सज जाएगा। तो ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब हम भगवान को जब डेकोरेट करेंगे, तो हम अपने आप डेकोरेट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान रियल ऑब्जेक्ट ऑफ लव है ना? भगवान ऑब्जेक्ट है, और हम सब लोग कौन है? रिफ्लेक्शन है हम लोग।
तो भगवान जब सज जाएंगे तो रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली डेकोरेट हो जाएगा। लेकिन बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, बाहर के लोग तो जो रिफ्लेक्शन है उसको सजा रहे हैं। अरे रिफ्लेक्शन को सजाओगे तो भगवान कैसे सजेंगे, भगवान को सजाने से रिफ्लेक्शन सजेगा। तो ये है फिलॉसफी एक्चुअली, है ना। सो दिस इज द रीजन। तो जब भगवान को हम सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, है ना। तो भगवान कृष्णा इज अ रूट ऑफ ट्री। सो व्हेन वी गिव वाटर टू द रूट ऑफ द ट्री, देन ऑल द ट्रंक, branches, flowers, they automatically got satisfied. All right. No need to give separate water to each and every branches. There is a useless. आप कितना भी टन्स ऑफ टन्स पानी दोगे ब्रांच में, इंडिविजुअल ब्रांच में, तो भी कुछ फायदा होने वाला नहीं, वो पेड़ सूख जाएगा। बेटर है केवल एक बकेट पानी अगर आप रूट में दे दोगे, पेड़ को जड़ में दे दोगे, तो वो पेड़ जो है पूरा फ्लोरिश हो जाएगा। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि वो एक बकेट पानी देना है, किसमें, जड़ में। और बाहर की जो वैरायटी है मतलब वो क्या है, इंडिविजुअली ट्रीज ब्रांच में पानी देने जैसा है, वो यूजलेस हो गया एंडेवर, है ना। सो श्रीमद् भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है ना, कि श्रम एव ही केवलम, उसका श्रुगलान मुझे याद नहीं आ रहा है, ना उत्पादित यदि रतिम धर्म स्वयंता पुंसा विश्वक्षेन कथा स्वयः ना उत्पादित यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो उसमें बता रहे हैं कि देयर इज सो मच एंडेवर, देयर इज सो मच एंडेवर but only for sense gratification is useless hard labor. Shram evahi kevalam, that is only shram, only endeavor, and by this there will be no peace in the society. So this point is very very much important. So what is the bottom line? To become happy in life, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, है ना। खाना पीना हमारे सिंपल होना चाहिए, पहनना सिंपल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल होना चाहिए। लेकिन हमारी जो सोच है, जो हमारी विचार हैं, वो क्या होना चाहिए, वो बहुत हाई होना चाहिए। तो प्रभुपाद यही बोलते हैं कि हमारा जो फिलॉसफी है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन हमारा खाना पीना, रहना, रोटी कपड़ा मकान, ये सिंपल होना चाहिए, है ना। दूसरों को दिखाना नहीं है हमें, ठीक नहीं। लेकिन बाहर मटेरियल भौतिक जगत में क्या होता है, अलग अलग प्रकार का डीओ लगा के जाएंगे, जिसका खुशबू सबसे अच्छा आएगा उसको, उस डीओ को लेंगे। वो किसके लिए, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, बट भक्ति में वो सब हम चीजें अलाउ नहीं करते। क्यों लगाना है डीओ भक्ति में, क्यों लगाना है, किसको इंप्रेस करना है तुम्हें? डीओ लगाने से कृष्ण तो इंप्रेस नहीं होंगे, है ना, किसको इंप्रेस करना है तुम्हें, अंडरस्टैंडिंग। इसलिए ये सब ज्यादा स्मेल वाले ऑयल, ज्यादा खुशबू वाले ऑयल, फ्रेग्रेंस वाले, ये हम यूज नहीं करते भक्ति में, क्योंकि ये अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। बट कृष्ण कॉन्शियस में हमें किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, हमें भगवान को प्लीज करना है। तो भगवान कैसे प्लीज होते हैं, हमारी केवल भक्ति से, है ना। हम जितने अच्छे से भक्ति करेंगे, जितना अच्छे से, है ना, भक्तों का शुरू करेंगे, भगवान उससे प्लीज होंगे। केवल हमारी सरलता से ही भगवान प्लीज होंगे, ना कि वेराइटी से। नेक्स्ट पैराग्राफ someone can read who have not contributed yet. From here, प्रभु जी मैं पढ़ूं? yes. Human life is meant for God realization, and human being is given higher intelligence for this purpose. Those who believe that this higher intelligence is means to attain a higher state should follow the instruction of the Vedic literature. By taking such instruction from the higher authority, no one can actually become situated in the perfect knowledge and give belonging to life. तो यहाँ बोल रहे हैं ह्यूमन लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज फॉर गॉड रियलाइजेशन, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। गॉड रियलाइजेशन, भगवान को समझना, भगवान को जानना, भगवान के बारे में जानना, भगवान की भक्ति करना। दिस इज द अल्टीमेट परफेक्शन, अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। The human being is given higher intelligence. देखो बुद्धि तो
होती है, ऐसा नहीं खाली इंसानों में होती है, बुद्धि उनके पास भी है। जैसे अब तो कैट का एग्जांपल दिया जाता है, फुटपाथ एग्जांपल देते हैं कैट का। क्या कैट में बुद्धि नहीं थी? मतलब कैट के अंदर बुद्धि नहीं, तो फिर वो कैसे जो मतलब कितना आराम से जाती है और वो दूध पी लेती है कि नहीं? और दूध पीने के बाद उस बर्तन को भी गिरा देती है और वो पकड़ भी नहीं पाते हैं, कितना आराम से आती है ना? कभी अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो, वैसे हालांकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी, है ना, क्योंकि जब तक हमें पता चलता है तब तक वो दूध पी के भाग जाती है, तब हमें पता चलता है। जैसे चोर होता है, जब चोरी करके जब चला जाएगा तब जाके पुलिस आती है कि नहीं? तो उसी प्रकार से होता है। तो बुद्धि तो उनके पास भी है ना? मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चा, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग, ये जो 4 चीजें हैं, ये जानवरों के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। इंटेलिजेंस उनके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इवन कई बार तो क्या होता है, जानवरों के अंदर भी ज्यादा इंटेलिजेंस है। इन 4 चीजों में जानवरों के अंदर ज्यादा इंटेलिजेंस है। कैसे अच्छे से खाना है, कैसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना है ना, रिप्रोडक्शन, है ना, एंड ईटिंग, स्लीपिंग, अच्छे से सोना है। इन 4 चीजों में वो लोग सफिशिएंट बुद्धि लगाते हैं। तो बुद्धि तो उनके पास है और बुद्धि हमारे पास भी है, लेकिन अंतर क्या है, वो लोग जो बुद्धि है वो केवल किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? केवल इन 4 चीजों के लिए बस। हाँ, हाउ टू ईट नाइसली, हाउ टू स्लीप नाइसली, हाउ टू मेट नाइसली, हाउ टू डिफेंड नाइसली, बस ओनली फॉर दिस 4 थिंग्स। इसके ऊपर वो नहीं सोच पाते हैं। लेकिन इंसानों के लिए भगवान ने जो बुद्धि दी है वो उसे एक एक्स्ट्रा स्टेप आगे वो कर सकते हैं। इसलिए ह्यूमन, they are the superiors than animals. Why they are superior? Because human, they can practice Krishna consciousness, they can chant Hare Krishna, they can read Prabhupada book, they can dance in front of Krishna, they can sit together and chant Hare Krishna Maha Mantra, they can take prasadam. But animals or other species of life, they can't chant Hare Krishna, they can't dance, yeah, right? That's why only on that basis humans, they are superior than the animals or other species of life. क्योंकि हम भक्ति कर सकते हैं, वो लोग भक्ति नहीं कर सकते। तो जब ये चीज हमें दिया गया है तो उसको हमें क्यों यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, है ना? क्यों फिर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं? ये चीज तो उनको भी मिल जाती है ना? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, तो ये तो उनको भी अवेलेबल है और हमारे ह्यूमन के लिए भी अवेलेबल है ना? लेकिन जो चीज अवेलेबल नहीं है जानवरों के पास, वो चीज ह्यूमन के पास अवेलेबल है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? उसको प्रोग्रेस करने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए। जो चीज हमारे लिए अवेलेबल है लेकिन उनके लिए अवेलेबल नहीं है, तो हमारे लिए क्या अवेलेबल है और उनके लिए क्या अवेलेबल नहीं है? तो वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि हम भक्ति कर सकते हैं। वो सौभाग्य हमें मिला है, वो सुयोग हमें मिला है, वो जानवरों के पास नहीं मिला है। तो इसलिए भक्ति हमें करना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा समय हमें केवल खुद की ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के लिए नहीं देना चाहिए, बल्कि किसके लिए देना चाहिए? गॉड रियलाइजेशन के लिए देना चाहिए। मैं कैसे अच्छे से भक्ति करूं, है ना, कैसे भक्तों के साथ में रहूं, हाँ, इस तरीके से। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब होता है वाई इंक्वायरिंग 2 क्वेश्चंस, है ना, हु आई एम एंड वाई आई एम सफरिंग हेयर। हु आई एम, मैं कौन हूँ? ये जानवर प्रश्न नहीं पूछ सकते कि मैं कौन हूँ, ये केवल इंसान ही पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, व्हाई आई एम सफरिंग। एनिमल दे कांट आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई एम आई सफरिंग। ओनली ह्यूमन दे कैन आस्क द क्वेश्चन, व्हाई आई एम सफरिंग हियर। भगवान कौन है, ये जगत क्या है, मैं कैसे, हाउ आई केम हियर एंड हाउ आई कैन गो बैक टू गॉड हेड। तो ये जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, ओनली ऑन दैट बेसिस ह्यूमन इज सुपीरियर देन एनिमल्स, बाय अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, by inquiring this such type of questions. Who I am, who is God, what is my relationship with God, why am I suffering here, and how I can get rid from this birth, old age, disease, death. What are the real problems of life? Birth, old age, disease, death. And to become free from these 4 real problems of life, this is the purpose of human form of life. तो अगर ह्यूमन लाइफ मिलके भी अगर हम इन चीजों के लिए प्रयास नहीं कर रहे, प्रयास तो लोग कर रहे हैं एक्चुअली, ह्यूमन शरीर मिलने के बाद लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, गधों की तरह कर रहे हैं प्रयास, लेकिन वो किसके लिए कर रहे हैं? केवल सेंस, खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, गॉड रियलाइजेशन के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं वो। तो उससे क्या हो रहा है? वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की साइकिल में और क्या हो रहा है? और फंसते चले जा रहे हैं। तो प्रयास हमें करना है, लेकिन कहाँ करना है प्रयास? प्रयास करना है हमें भगवान के लिए, हार्डवर्क करना है हमें,
हमें लेजी नहीं होना चाहिए. वी शुड नॉट बिकम लेजी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. नो, Prabhupada says that this Krishna consciousness movement is not for lazy and crazy men. We should become even more hard work, even more than materialistic persons. But for what? To please Krishna. भगवान को प्लीज करने के लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए. And devotees in the temple, they are also working very very hard to get up very early in the morning. Even many devotees, they get up before 2 a.m. Many devotees, because they have deity seva, so they have to wake up deities, they have to bathe the deities, they have to wear the cloth the deities. So for that they have to raise early in the morning. See, are they not doing hard work? They are doing tapasya. What's the point? Because this is the purpose of life, है ना. जैसे बाहर के लोग हैं, वो भी कम सोते हैं, वो भी 3-4 घंटे सोते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, वो भी 3-4 घंटे सोते हैं बाहर के लोग. लेकिन और डिवोटी लोग होते हैं, वो भी कम सोते हैं, कई बार 4 घंटे सोते हैं, 3 घंटे. जन्माष्टमी का जो समय होता है, उस समय तो जो पुजारी लोग होते हैं मंदिरों में, वो तो सोते ही नहीं है, 2 दिन तक तो सोते ही नहीं है वो, क्योंकि जन्माष्टमी पर रात को अभिषेक होता है 12 बजे, और प्रसाद होते होते 1:30-2 बज जाता है, और उसके बाद दूसरे दिन जन्मोत्सव, प्रभुपाद जन्मोत्सव होता है, उस दिन भी 12 बजे तक फास्टिंग रहता है. तो जन्माष्टमी के दिन पुजारी लोग तो सोते ही नहीं है, टाइम ही नहीं है उनको, है ना. तो दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर ओन स्लीप. एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ, दे आर आल्सो सैक्रिफाइसिंग देयर ओन स्लीप, बट पर्पस इज डिफरेंट. मटेरियलिस्टिक पर्सन, दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर स्लीप फॉर देयर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट. बट डिवोटीज, दे आर सैक्रिफाइसिंग फॉर व्हाट? टू प्लीज कृष्णा. दिस इज द डिफरेंस एक्चुअली. Things are same, but different. The purpose is different. Purpose is what? In Krishna consciousness, purpose is to please Krishna. इसलिए वो तपस्या कर रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग. तो ये पर्पस क्लियर होना चाहिए कि ह्यूमन फॉर्म हमें मिल गया है, लेकिन अब क्या करना चाहिए, इसको हमें भगवान को प्लीज करने के लिए काम करना चाहिए. हमें चैंटिंग करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, और भगवान की जो स्पेसिफिक जो तिथियां होती हैं, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, और जो आचार्यों की जो अपीयरेंस डे और डिसेंबर्स डे है, प्रभुपाद अपीयरेंस डे, डिसेंबर्स डे, इन समय हमें फास्टिंग करना चाहिए, है ना. तो इससे क्या होगा, हमारा जन्म सार्थक हो जाएगा. इसको बोलते हैं गॉड रियलाइजेशन, है ना, इस तरीके से. देन ह्यूमन लाइफ विल बिकम सक्सेसफुल. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. सो आई विल स्टॉप इट हियर.